Alright, so we have seen 3 sets of CAT 2019 slot 2 paper, and it's time to look at the 4th set. So the data is on the screen. There is a table and there are some points. Now this is a good set. So good in terms of the difficulty. This is a little difficult, right? So what I'm going to do is I'm going to give you about a total of 15 minutes to read the data, understand what is given, understand what is missing, and what other solution table or other solution you will need to create, and to create that. So I'm going to give you a total of 15 minutes. After that, we will go through the questions. I'll be giving you some less time to go through the questions because you will have the solution table ready with you, right? So take 15 minutes, pause the video, try to understand everything, create the solution table, and resume when you are done. If you think 15 minutes is less, you can take 5 minutes additional, not more than that, because if you are not getting it under 20 minutes, probably you will need to see how we are solving it together, right? So pause it for about 15 minutes, 5 minutes extra if you want, and then resume the video. Alright, so I hope by now you are done and you have created the solution table for yourself. Let me go to the questions. Question number 1. What were the scores of Chen, David and Eric respectively after round 3? So if you have created the solution table, this should not take you more than 1 minute, okay? As I've already described this set to be of the difficult level. So that was a heads up that I needed to give you. Take 1 minute for this question, mark your, enter your answer, mark your answer, and resume when you're done. Alright, so I hope by now you are done with this question. Let me move to the question number 2. Which 3 players were in the last 3 positions after round 4? Once again, if you have already created the solution table, I am going to give you 2 minutes for this one. Provided that you have created the solution table, level of difficulty is difficult, right? I won't even say moderate. This is a difficult set for sure. Resume when you are done. Pause the video, resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done. That was question 2. Question 3. Which player scored points in maximum number of rounds? Which player scored points in maximum number of rounds? So once again, I'm going to give you 2 minutes for this one. Pause the video for 2 minutes, try to solve it on your own, and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done. Let's move to question 4. Which players scored points in the last round? Which players scored points in the last round? 2 minutes, level of difficulty is difficult. Pause the video for 2 minutes, resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question, and I'm hoping that at least 50% of you have been able to solve a couple of questions, right? Now let's try to solve this question together. Now it's a difficult one. I won't say it's easy. It's a difficult one, hands down, right? So we have to move carefully, right? When I say this is a difficult question, that means probably, ideally, this question should not have been selected in your CAT. This is what I mean to say when it's difficult. Does not mean, if a question is difficult, that does not mean that you will leave that question entirely in your preparation. Right now you are preparing, and for preparation you need to prepare for the worst, right? And that is why we go especially to the difficult questions, right? Please understand what I'm saying. You have to choose the easy questions, but you can't run away from difficult questions, because what if by some miscalculation you end up choosing this one and you think that this is the question that you need to solve, right? So for all those worst case scenarios, this is the strategy, that you will go through the difficult questions in order to understand, in order to develop the ability to identify that this question is difficult and I'm not going to attend. That is why we need to go through such questions, right? Plus, the other advantage which you might not have identified till now of solving such questions is that it really develops your logic. It gives you the chance to attempt a very difficult question
it gives the chance to apply your logic. And if you are successful, let's say with the help of me or with the help of your friend, if you are successful, it gives you a confidence boost, which as a student you do require, right? So let's all try to read the question first. Okay, let's read the question together. 10 players as listed in the table below participated in a rifle shooting competition comprising of 10 rounds. Okay. The players' name are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So wonderful. We have to call them A, B, C, D only. उनको हम उनके नाम से नहीं बुलाएंगे तो चलेगा. So we've got A to J. Okay. Each round had 6 participants. So this is something new. Generally हम ये सोचेंगे कि अगर 10 प्लेयर है तो 10 के 10 खेलेंगे. बट यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? Each round had only 6 participants. तो ये कुछ नया है. This is something new. This is something different from the other regular sets that we have seen. Players numbered 1 through 6 participated in round 1. Players number 2 to 7 participated in round 2. Players number 5 to 10 in round 5, 6 to 10 in round 6, 7 to 10, 1, 2 in round 7 and so on. So आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए. राउंड 1 में कौन खेलेंगे? राउंड 1 में खेलेंगे 1 से 6, फिर राउंड 2 में 2 से 7, फिर राउंड 3 में 3 से 8, फिर राउंड 4 में 4 से 9, राउंड 5 में 5 से 10, राइट? फिर राउंड 6 में कौन खेलेंगे? राउंड 6 में खेलेंगे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 1. राउंड 6 चालू होगा 6 से, राउंड 7 चालू होगा 7 से. 7 से काउंट करते हुए साइक्लिक मोड में आपको वापस आना है 1, 2, 3 पे. ओके, सो ये चीज समझना बहुत जरूरी है. फिर से एक बार चलो रैंडम राउंड चुनते हैं. राउंड 4 में कौन खेलेगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 लोग, 6 प्लेयर्स. एक राउंड में 6 प्लेयर्स ही खेलेंगे. ओके, राउंड 8 में कौन खेलेगा? 8, 9, 10. यहां तो खत्म हो गए तो वापस ऊपर जाओ. 1, 2, 3, ये 6 लोग खेलेंगे. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कौन किस राउंड में खेलेगा. ओके, कौन किस राउंड में खेलेगा, है ना? सो अगर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, लेट्स से कौन सा प्लेयर कौन से राउंड में खेल रहा है, कौन सा प्लेयर कौन से राउंड में खेल रहा है, तो वो टेबल कैसा दिखेगा, राइट? जैसे कि अगर आप सोचो कि अमिता कौन से राउंड में खेलेगी, तो अमिता खेलेगी राउंड 1 में, राइट? अमिता खेल रही है राउंड 1 में. उसके बाद राउंड 2 नहीं खेलेगी, 3 नहीं खेलेगी, 4 नहीं खेलेगी, 5 नहीं खेलेगी, 6 खेलेगी, 7 खेलेगी, 8 खेलेगी, 9 खेलेगी और 10 खेलेगी. ये है अमिता. ये जो मैं उसके बाजू में लिख रहा हूं वो 1, 6, 7, 8, 9, 10 वो जो राउंड खेलेगी वो हम लिख रहे हैं, राइट? बाला देखिए, बाला. सो बाला कौन सा राउंड खेलेगा? राउंड 1 खेलेगा, राउंड 2 खेलेगा, राउंड 3 नहीं खेलेगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 6 भी नहीं, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे. सो 7, 8, 9, 10, राइट? ऐसे करते करते हम हर एक प्लेयर कौन से राउंड खेलने वाले हैं ये हम ढूंढ सकते हैं. वी कैन फाइंड दैट, राइट? जरूरत है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी नहीं करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द डेटा. एक और क्या दिया हुआ है, चलो यहां तक अभी तक हमने पढ़ा हुआ है. नाउ द टॉप 3 परफॉर्मेंसेस इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. बहुत बढ़िया. चलो ये एक और इंफॉर्मेशन है कि मार्क्स जो मिलेंगे ना, स्कोर, ये जो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स 3 ही टाइप के हो सकते हैं. 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है. रैंक नंबर 1 को मिलेगा 7 पॉइंट, रैंक नंबर 2 को मिलेगा 3 पॉइंट, रैंक नंबर 3 को मिलेगा 1 पॉइंट. बस 7, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 3, 1 यही चलेगा और कुछ नहीं. There were no ties in any of the 10 rounds. ये बहुत अच्छी बात है. There were no ties मतलब बेसिकली हर एक राउंड में 3 परफॉर्मर थे. परफॉर्मर नंबर 1, परफॉर्मर नंबर 2, परफॉर्मर नंबर 3. सिंपल. परफॉर्मर मतलब विनर्स. The table below gives the total number of points obtained by the 10 players after round 6 and round 10. याद रखना after round 6 round 10 है. ये after round 6 round 10 है ना? After round 6 and round 10.
सो लेट्स थिंक अबाउट दिस। जैसे अमिता का जो पॉइंट आफ्टर राउंड 6 है, मतलब राउंड 6 तक, पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6, राउंड 6 तक के पॉइंट है ये। अमिता का स्कोर है 8 और पॉइंट आपको मिल रहे हैं सिर्फ 731 में, तो 8 कैसे बन पाएगा? 8 कैसे बन पाएगा? 8 या तो बन पाएगा लेट्स से 3131 करके 8 बनेगा, राइट, 3131, या फिर 7 + 1 करके 8 बनेगा, या फिर 7 + 1 बन के। तो अगर आप सोचो अमिता जो है उसने राउंड 6 तक तो सिर्फ 2 ही राउंड खेले हैं, 1 and 6, तो ऑब्वियसली 2 ही स्कोर किया है और उसका सम 8 हो गया है। सो एक स्कोर पक्का 7 होगा और एक स्कोर पक्का 1 होगा। ये हम डिड्यूस कर सकते हैं। अमिता ने राउंड 6 तक सिर्फ राउंड 1 और राउंड 6 खेला है। देखो हमने यहां पर लिखा हुआ है राउंड 1 एंड राउंड 6 खेला है। सो ऑब्वियसली दो ही राउंड खेले हैं और स्कोर 8 हो गया है। 2 राउंड खेले हैं, स्कोर 8 हो गया है। स्कोरिंग पैटर्न है 731, तो स्कोर कैसे 8 बना होगा? 7 और 1 होकर ही 1 बना होगा। इसका मतलब पक्का अमिता ने राउंड 1 में भी स्कोर किया है, राउंड 6 में भी स्कोर किया है। तो अब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि हमें कैसा टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट हियर। लेट्स से ये राउंड 1 है, R1, ये राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10। ये एक टेबल आपको दिख रहा होगा, ये है 7 पॉइंटर के स्कोर, मतलब रैंक 1, परफॉर्मर नंबर 1। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 7, मतलब जिसका स्कोर 7 है वो। ये है 3, मतलब जो सेकंड रैंक आया है वो, और ये है 1, ये है 1। ओके, अभी तक हमें क्या पता चला है? अभी तक हमें यह पता चला है कि अमिता ने राउंड 1 और राउंड 6 में स्कोर तो पक्का किया है, एक में 7 एक में 1। तो उसको कहीं पे लिख देते हैं कि राउंड 1 में अमिता आएगी ही आएगी। ये पार्किंग है, यहां पर मैं डेटा को पार्क कर रहा हूं। राउंड 1 में अमिता है ही है, राउंड 6 में भी अमिता है ही है। यहां तक अभी हमें मालूम चला है। ठीक है, वापिस आते हैं। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट राउंड 1 through 6। चलो, राउंड 1 से 6 में ये पता चला है, गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। गॉर्डन ने एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर नहीं किया है। गॉर्डन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो लेट्स सी व्हाई ये इंफॉर्मेशन दी है और क्या हम इसकी मदद से कुछ गॉर्डन का स्कोर पता कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ राउंड 1 से 6 के तक ही ये डिटेल्स हैं, ये 1 and 2। तो गॉर्डन का स्कोर देखिए, गॉर्डन का स्कोर 17 है, 17 का स्कोर है गॉर्डन का। और गॉर्डन कौन से राउंड खेला है? चलो गॉर्डन के बारे में सोचो। गॉर्डन ने खेला होगा राउंड 2, इधर लिख रहा हूं मैं, राउंड 2 खेला होगा गॉर्डन ने, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड, ये एक्चुअली कॉमा हटा देते हैं। सो गॉर्डन की बात कर रहे हैं, 2 खेला है, 3 खेला है, 4 खेला है, 5 खेला है, 6 खेला है, 7 खेला है। 2 खेला, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं खेल पाया होगा, 9 नहीं खेल पाया होगा, 10 नहीं खेल पाया। गॉर्डन के राउंड है 2, 3, 4, 5, 6। ओके, राउंड 6 तक वो लोग बोल रहे हैं कि गॉर्डन ने कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर नहीं किया, मतलब एक के बाद एक। सो आप सोचिए कि गॉर्डन जो है वो राउंड 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 राउंड में उसने कॉन्जिक्यूटिव स्कोर नहीं किया है। ठीक है, ओके। गॉर्डन का स्कोर है 17 का स्कोर कैसे कोई स्कोर कर पाएगा? चलो 17 के बारे में सोचिए। 17, अगर गॉर्डन ने एक के बाद एक ही स्कोर किया है ऑल्टरनेट बेसिस पे, अगर गॉर्डन ने ऑल्टरनेट बेसिस पे स्कोर किया है, या एक राउंड जीता, फिर 2 राउंड नहीं जीते, फिर एक और राउंड जीता, स्कोर 17 कैसे बनेगा? हाउ विल गॉर्डन स्कोर 17?
सो एक चीज दिमाग में आ रही है कि 7 का स्कोर करो, 7 का स्कोर करो और फिर 3 का स्कोर करो, तब जाकर 3 मैच में 17 का स्कोर बनता है। 2 मैच में मैं गॉर्डन का स्कोर 17 नहीं बना सकता, मुझे कम से कम गॉर्डन से 3 मैच खिलवाने पड़ेंगे, कम से कम गॉर्डन से 3 मैच खिलवाने पड़ेंगे। सो गॉर्डन का स्कोर होगा 773, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज गुड इंफॉर्मेशन। ये जो 17 है ये होगा 773। चलो 2 3 4 5 6 में वो 3 मैच में स्कोर कर रहा है। अब आप देखिए यहां पर 2 3 4 5 6 में वो 3 मैच में स्कोर कर रहा है 773। सो ऑब्वियसली थर्ड राउंड में और फिफ्थ राउंड में वो स्कोर नहीं करेगा, 2 में करेगा, 4 में करेगा, 6 में करेगा। तो यहां पर भी गॉर्डन आएगा, यहां पर भी गॉर्डन आएगा और यहां पर भी गॉर्डन आएगा, है ना। 3 मैच तो खेलनी ही पड़ेगी, तभी जाकर 773 का वो स्कोर कर पाएगा। ओके, इसका मतलब ये भी है कि थर्ड में गॉर्डन नहीं आएगा, सो मैं यहां पर जी को कैंसिल कर देता हूं। फिफ्थ में भी गॉर्डन नहीं आएगा तो जी को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि यहां पर गॉर्डन ने स्कोर नहीं किया है। ये पार्किंग को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। ये हमें सारा वो डेटा जो हम अभी टेबल में नहीं एंटर कर सकते, वो यहां पर पार्क करने दे रहा है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट पार्किंग। सो फिलहाल वी हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट गॉर्डन हैज स्कोर्ड इन राउंड 2, इन राउंड 4 एंड राउंड 6। गॉर्डन का स्कोर का पैटर्न भी पता चल चुका है 773। मतलब पक्का यहां पर इन तीनों में से किसी 2 में गॉर्डन तो आएगा ही आएगा, इन तीनों में से किसी 2 में गॉर्डन तो आएगा ही आएगा। अब डेटा पे चलते हैं। चलिए, गॉर्डन का बाद में भी स्कोर 17 ही है, मतलब गॉर्डन ने 0 स्कोर किया होगा बाकी राउंड्स में। सो अब हमें यह पता चल चुका है कि बाकी राउंड्स में गॉर्डन नहीं आएगा। मतलब राउंड 1 में गॉर्डन गया, राउंड 2 3 4 5, उसके बाद राउंड 7, उसमें भी गॉर्डन नहीं आएगा, इसमें भी गॉर्डन नहीं आएगा, इसमें भी गॉर्डन नहीं आएगा और इसमें भी गॉर्डन नहीं आएगा। राइट, एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन आपको डिड्यूस करना है। सो गॉर्डन कहां कहां पर है ये हमें पता चल चुका है। गॉर्डन है यहां पर राउंड 2 में है, राउंड 4 में है और राउंड 6 में है। चलो we've अंडरस्टूड दिस। यहां पर अपने पास अमिता भी है और यहां पर भी अपने पास अमिता है। एक में उसने 7 स्कोर किया है, एक में उसने 1 स्कोर किया है ना। एक में 7 और एक में 1 स्कोर किया है, इतना हमें मालूम है। सो मैं कहीं लिख देता हूं। सो अमिता इज 1 और 7 एंड गॉर्डन 773। ये राउंड 6 तक की बातें चल रही हैं अभी तक। और क्या दिया हुआ है? एरिक एंड फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड 6 तक किसी एक राउंड में एरिक और फातिमा दोनों ने स्कोर किया है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। चलिए, और क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, बाला का स्कोर राउंड 1 राउंड 2, बाला ने राउंड 6 तक से 2 राउंड खेले, राउंड 1 राउंड 2। स्कोर है उसका 2 का स्कोर कैसे बन सकता है? अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 731 से ही हो पाएगा तो 2 का स्कोर बनेगा 1 और 1 बन के। इसका मतलब ये हो गया, हमें पता चल गया कि राउंड 1 में भी लास्ट बाला है, राउंड 2 में भी लास्ट बाला है ना। राउंड 1 में भी लास्ट बाला है, राउंड 2 में भी लास्ट बाला है। सो इसको हम इधर डाल देते हैं कि यहां पर बाला और यहां पर भी बाला, यहां पर बाला, यहां पर भी बाला। ओके, चलिए, अमिता का एक स्कोर 1 है। सो अमिता का स्कोर 1 इधर नहीं आ सकता। सो अमिता पक्का यहां पर 7 स्कोर करेगी, हमें पता है 1। और अमिता का दूसरा 1 का स्कोर यहां पर आएगा, अमिता का दूसरा 1 का स्कोर यहां पर आएगा। करेक्ट। गॉर्डन 3 का स्कोर भी कर सकता है, तो वो 3 इधर भी आ सकता है, बाकी इधर 7 सो अभी तक गॉर्डन का हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट अमिता का हमें पता चल चुका है कि अमिता यहां पर 1 स्कोर कर रही है और यहां पर 7 का स्कोर कर रही है। तो अमिता का हम अभी तक एकदम कंक्लूड कर चुके हैं राउंड 1 से 6 तक का। बाला का ये पता चला कि राउंड 1 2 में उसने 1 स्कोर किया है। चलिए, और क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं? ये पूरा क्वेश्चन आपको बस डिड्यूस करना है कौन सा स्कोर किधर आ सकता है, दैट्स इट। बट कौन सा पॉइंट आप पिकअप करते हो, उससे क्या डिड्यूस करते हो, किसी पॉइंट से अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो क्या आप वहां पर रुक जाते हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सो आइए वापस चलते हैं डेटा की तरफ। कहीं और कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन जो हम बना सकते हैं, एनी ऑब्जर्वेशन दैट कैन हेल्प अस। चलिए, लेट्स थिंक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट राउंड 7 थ्रू राउंड 10। डेटा पढ़ लेते हैं।
ओनली 2 players scored in 3 consecutive rounds. 3 consecutive राउंड्स में स्कोर करने वाले सिर्फ 2 लोग थे, उसमें से चेन था। चलिए चेन के राउंड्स देख लेते हैं। चेन कौन से राउंड्स खेलेगा? 1 खेलेगा, 2 खेलेगा, 3 खेलेगा, 4 नहीं खेलेगा, 5 नहीं खेलेगा, 6 नहीं खेलेगा, 7 खेलेगा, 7 नहीं खेलेगा, 8 खेलेगा, 9 खेलेगा, 10 खेलेगा। 8, 9, 10। चेन में 1, 2, 3 या तो 1, 2, 3 में स्कोर किया है चेन ने, या तो 8, 9, 10 में स्कोर किया है चेन ने। चेन का स्कोर देखिए, चेन का राउंड 6 तक स्कोर था 3, और 3 का स्कोर कैसे मिल सकता है? या तो आप एक कहीं पे आप सेकंड आ सकते हो, या तो आप 1 + 1 + 1 कर सकते हो। यहां पर भी स्कोर देखिए 6 है, तो यहां पर भी 3 का ही स्कोर हुआ है उसका लास्ट के राउंड्स में। तो वहां पर भी एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो आपने 1, 1, 1 किया होगा, या तो आपने एक जगह 3 जीता होगा। इंफॉर्मेशन क्या दी है कि चेन ने 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में स्कोर किया है। 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स मतलब क्या वो राउंड 1 से 6 में है, या राउंड 7, 8, 9, 10 में है? तो देख लेते हैं। चलिए चेन का स्कोर 3, 1, 1, 1 क्या राउंड 1 से 1, 2, 3 में हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 में ऑलरेडी यहां पर बाला आ चुके हैं। इसका मतलब एक ही है कि चेन ने अपने प्रीवियस राउंड्स में, पिछले राउंड मतलब बाकी के राउंड्स में 8, 9, 10 में 1, 1, 1 स्कोर किया है, और वो यहां किया है। सो ये एक डेटा में मिल चुका है कि भाई चेन का 8, 9, 10 इज 1, 1, 1। सो लेट मी इंसर्ट दैट 8, 9, 10 में यहां पर चेन। चलिए चेन का एक 1, 1, 1। नाउ चेन आ सकता है 1, 2, 3 में। इसका मतलब यहां पर चेन नहीं है, यहां पर चेन नहीं है, यहां पर चेन नहीं है, और यहां पर भी चेन नहीं है। इतना हम कह सकते हैं फॉर श्योर, है ना? ठीक है, चेन इज यहां पर 7, 8, 9, 10 में 1, 1, 1। अमिता इज यहां पर, बाला इज यहां पर, अमिता इज वहां पर। ओके, वापस चलते हैं डेटा की तरफ, और कोई डेटा पकड़ के उसके बारे में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए डेविड 6 है, पॉइंट आफ्टर 6 वो भी 6, और पॉइंट्स आफ्टर 10 वो भी 6। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का स्कोर बढ़ा ही नहीं है, राइट? सो अब हमें इंडिविजुअल स्कोर्स में जाके ये देखना चाहिए कौन से ऐसे लोग हैं जो जीत सकते हैं, मतलब 7 पॉइंटर स्कोर कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कभी 7 पॉइंटर स्कोर नहीं कर सकते, एंड सो ऑन, राइट? सो लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स थिंक अबाउट राउंड 1। राउंड 1 किसके बीच में हुआ? अमिता बाला, ABCDEF, ABCDEF, राउंड 1। और राउंड 1 में अब देखिए बाला नहीं जीत सकता 7 पॉइंटर, चेन नहीं जीत सकता, डेविड नहीं जीत सकता, एरिक नहीं जीत सकता, फातिमा जीत सकती है, और अमिता जीत सकती है। चलो, क्या अमिता राउंड 1 में जीती है? अमिता राउंड 1 में जीती है, नंबर 1। सो अमिता राउंड 1 में उसका 7 पॉइंटर आ चुका है। अब आप सोचिए राउंड 2 के बारे में। थिंक अबाउट राउंड 2। बाला है, बाला नहीं जीत सकता। राउंड 2 किसके बीच में है? बाला, चेन, डेविड, एरिक, फातिमा, गॉर्डन, इनके बीच में राउंड 2 है। राउंड में बाला नहीं जीता, चेन नहीं जीता, डेविड नहीं जीता, एरिक नहीं जीता, फातिमा जीत सकती है और गॉर्डन जीत सकता है। राउंड 2 में फातिमा जीत सकती है और गॉर्डन जीत सकता है ना? ओके, राउंड 3 देखिए। राउंड 3 किसके बीच में? चेन, डेविड, एरिक, फातिमा, गॉर्डन, हंसा। राउंड 3 कौन जीतेगा? चेन नहीं जीत सकता, डेविड नहीं जीत सकता, एरिक नहीं, फातिमा यस, गॉर्डन यस। सो एक चीज समझ में आ रही है कि राउंड 2 में कौन जीतेगा? राउंड 2 था बाला से लेकर गॉर्डन तक, तो उसमें फातिमा या फिर गॉर्डन। राउंड 3 ये भी कौन जीतेगा? फातिमा या तो गॉर्डन। कोई एक राउंड पक्का फातिमा जीती है, कोई एक राउंड पक्का गॉर्डन जीता है, तभी ये फातिमा का 10 पॉइंटर है, करेक्ट? तभी ये फातिमा का 10 पॉइंटर है। वो 3-3-3-1 तो बना नहीं सकती। 3 बार कॉन्जिक्यूटिव 2 ही लोगों ने स्कोर किया है, 4 बार किसी ने नहीं किया। सो इट्स नॉट 3-3-3-1, इट हैज टू बी 7 and 3 और 7 and 1-1-1, है ना? सो अब हम क्या कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि राउंड 2 और राउंड 3 में से एक राउंड पक्का फातिमा ने जीता है, एक राउंड पक्का गॉर्डन ने जीता है। सो डेटा पे आते हैं। राउंड 3 गॉर्डन ने नहीं जीता है, सो हम यहां पर पक्का बोल सकते हैं कि राउंड 3 फातिमा ने जीता है, राउंड 3 फातिमा ने जीता है।
एंड राउंड 2 गॉर्डन ने जीता है, राउंड 3 फातिमा ने जीता है, बिकॉज वहां पर गॉर्डन आ ही नहीं सकता है। देखिए राउंड 3 में गॉर्डन आ ही नहीं सकता, ये हमने बोला हुआ है। सो वापस आते हैं अपने डेटा पे। राउंड 3 कौन सा था? चेन, डेविड, एरिक, फातिमा, गॉर्डन। ये राउंड गॉर्डन नहीं जीत सकता है, तो जीतने के लिए एक ही कैंडिडेट बचा है, फातिमा। फातिमा का पॉइंट है 10। सो फातिमा का एक स्कोर 7 है, फातिमा का एक स्कोर 7 है, करेक्ट, और एक स्कोर होगा 3, और यहां पर 0। 7, 8, 9 में फातिमा ने कुछ जीता ही नहीं है, डेविड ने भी कुछ नहीं जीता है। ठीक है, ये चीजें अभी अपने को समझ में आ रही है। चलो, फातिमा का 1, 7, 1, 3, गॉर्डन का 7, 7, 3, ये चीज समझ में आई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स थिंक अबाउट राउंड 8। राउंड 8 कौन खेलेगा? मैं फिर से उनको टिक करता हूं जो राउंड 8 खेलेगा। हंसा, आइकिया, जोशन, अमिता, बाला, चेन। अमिता ऑलरेडी राउंड 1 जीत चुकी है, सो अमिता का एक और राउंड जीतना अभी राउंड 8 के लिए पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज अमिता 18 पॉइंट पे बैठी है यहां पर। ठीक है, चलिए राउंड 5 के बारे में बात करते हैं। राउंड 5, राउंड 4 देख लिया हमने, राउंड 4 देख लेते हैं। डेविड, एरिक, फातिमा, गॉर्डन, हंसा एंड आइकिया, ये है राउंड 4। डेविड नहीं जीत सकता, एरिक नहीं जीत सकता, फातिमा ने ऑलरेडी एक राउंड जीत लिया है। कौन सा? फातिमा ने राउंड 3 जीत लिया है, सो फातिमा एक और जीत नहीं कर सकती, पॉइंट नहीं उसके पास। सो राउंड 4 पक्का कौन जीतेगा? गॉर्डन ही जीत सकता है राउंड 4, और कोई कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास। सो राउंड 4 गॉर्डन ने जीता है, ये हमें समझ में आ गया। मतलब गॉर्डन ने राउंड 2 जीता, राउंड 4 जीता, सो गॉर्डन का एक और 3 बचा होगा, जो कहां पर होगा? राउंड 6 में। सो यहां पर गॉर्डन 3 पॉइंटर पे है। गॉर्डन गॉर्डन गॉर्डन, ये समझ में आ गया। अमिता अमिता, ये समझ में आ गया। यहां पर फातिमा जीती है, ये समझ में आ गया, है ना। राउंड 5 पे आते हैं। राउंड 5, चलिए राउंड 5 किसके बीच में? राउंड 5 सोचिए, एरिक, फातिमा, गॉर्डन, हंसा, आइकिया, जोशन। एरिक जीत नहीं सकता, फातिमा 1 जीत चुकी, गॉर्डन भी 2 जीत चुका, हंसा नहीं जीत सकती, आइकिया नहीं जीत सकती, जीतने वाला जोशी नहीं हो सकता है, और वो भी 14 का स्कोर बन सकता है 7, 7 से। 14 का स्कोर बन सकता है 7, 7 से। इसका मतलब राउंड 5 जीतने वाला कौन है? जोशन है। राउंड 5 इज जोशन। डाल देते हैं टेबल पे। सो राउंड 5 को जीतने वाला है जोशन। राउंड 5 को जीतने वाला है जोशन। जोशन के पॉइंट्स 14 थे, जोशन के पॉइंट्स 14 थे राउंड 6 तक। ऑलरेडी इतने विनर्स मिल चुके हैं, सो एक और 7 होने वाला यहीं पे पॉसिबल है। सो राउंड 6 कंप्लीटली मिल चुका है। जोशन, जी एंड ए, गॉर्डन एंड अमिता। जोशन राउंड 5 जीता है, बाला राउंड 1 एंड 2 में 1 के स्कोर पे है। राउंड 6 की इतनी कहानी अभी तक फिलहाल क्लियर है अपने पास। राउंड 6 तक की इतनी कहानी अभी अपने पास क्लियर है। वापस चलते हैं डेटा पे, वापस चलते हैं। ओके, राउंड 6 तक वी आर डन, करेक्ट। राउंड 6 भी फातिमा, गॉर्डन वगैरह वगैरह। राउंड 7 पे आते हैं। राउंड 7, यहां पर स्कोर 0 है। राउंड 7 खेला है गॉर्डन, हंसा, आइकिया, जोशन, अमिता एंड बाला ने। राउंड 7। सो अब हमें यहां पर देखना है, अब हमें यहां पर देखना है। ओके, देखिए अमिता का स्कोर हुआ 8 से 18, 8 से 18 मतलब 10 का इंक्रीज, और सारे राउंड 7, 8, 9, 10, राउंड 7, 8, 9, 10 सब में तो वो स्कोर कर नहीं सकती। सो ऑब्वियसली अमिता ने यहां पर एक जो 10 का इंक्रीज हुआ है वो 7 और 3 से किया है। 7 और 3 से किया है 10 का इंक्रीज, 7 और 3। यहां पर 1, 1, 1 ये हमें पता था। एरिक का इंक्रीज जो हुआ है, एरिक का इंक्रीज, सो एरिक ने 3 से 10 पर पहुंचा है, मतलब 7 का इंक्रीज है। सो या तो वो 3, 1, 3 हो सकता है, 3, 3, 1 हो सकता है, या तो सीधा 7 का इंक्रीज हो सकता है। फातिमा में कोई इंक्रीज नहीं, गॉर्डन में कोई इंक्रीज नहीं। हंसा ने इंक्रीज किया है 1 से 4, हंसा ने इंक्रीज किया है 1 से 4। सो वो 1 से 4 मतलब 3 का इंक्रीज है। 3 का इंक्रीज या तो 1, 1, 1 से मिल सकता है, या तो डायरेक्टली 3 से मिल सकता है। ठीक है, ओके। आइकिया का देखिए, आइकिया 2 से सीधा 17 मतलब 15 का इंक्रीज। हाउ इज 15 पॉसिबल? आपको 15 तो 4 राउंड में स्कोर करवाना ही करवाना है। हाउ इज दैट पॉसिबल?
चलो मान लो कि अगर मैं एक स्कोर लेता हूं 7, दूसरा स्कोर लेता हूं 3, तो वो बन जाएगा 10, बाकी बचा 5 तक तो स्कोर नहीं है। इसका मतलब मुझे एक स्कोर लेना पड़ेगा 7, दूसरा स्कोर लेना पड़ेगा 7, तीसरा लेना पड़ेगा 1। 7 and 7 and 1, यही एक तरीका है जिससे आप 15 का स्कोर बना सकते हो। सो आइकिया जो है उसका स्कोर यहां पर होगा 7, 7, 1, मतलब किसी 2 राउंड में विनर और किसी एक राउंड में लूजर। अब देखिए आइकिया के राउंड्स कौन से हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं 7, 8, 9, 10। ये सेट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से, आराम से, शांति से समझा रहा हूं। अगर कोई भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, फिर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पॉज करिए, रिवाइंड कीजिए और वापस यहां पर आइए। करेक्ट, बट वी आर गोइंग वेरी स्लोली एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट। इसको मैं फास्ट सब कुछ नहीं, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट यू टू नोटिस द थिंग्स जो मैं शायद अगले बार नोटिस करूंगा। ओके, चलिए आइकिया के बारे में सोचते हैं। आइकिया ने कौन से राउंड खेले होंगे? अगर मैं ये सोचूं, आइकिया राउंड 1 नहीं खेला होगा, 2 नहीं खेला होगा, 3 नहीं खेला होगा, 4 खेला होगा इसने, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आइकिया ने इतने राउंड खेले, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब आइकिया ने राउंड 10 खेला ही नहीं है, तो ऑब्वियसली खेला नहीं तो स्कोर कैसे करेगी? तो अब हमें समझ में आ गया कि आइकिया का स्कोर 7, 7, 1 है। कहां पर? 7, 8, 9 पे। आइकिया का स्कोर 7, 7, 1 किसी भी ऑर्डर में, मैंने ऐसा बोला कि 7, 7, 1 ही ऑर्डर है, बट उसका स्कोर है 7, 8, 9 में। तो अब मैं जाऊंगा अपने टेबल के पास, हम जाएंगे 7, 8, 9 में। 7, 8, 9 कहीं पे आइकिया ने 1 का स्कोर किया है और बाकी 2 जगह पर 7 का स्कोर किया है। ऑब्वियसली 1 का स्कोर इधर नहीं कर सकती वो, तो 1 का स्कोर यहीं पे बचा है, तो यहां पर आइकिया आएगी और इसका मतलब यहां पर भी विनर, यहां पर भी विनर। सो ये आइकिया का हमें पता चल गया। राउंड 7 में 1 का स्कोर, राउंड 8 में 7 का स्कोर, राउंड 9 में 7 का स्कोर। चलिए राउंड 10 पे कौन स्कोर करेगा? राउंड 10 यहां पर हमें कुछ दिया हुआ है। अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10 ऐसा बोला हुआ है। जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7, अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। शायद ये इंफॉर्मेशन अब हमें काम में आ सकती है। जोशिन ने राउंड 7, अमिता राउंड 10। टेबल पे आते हैं। जोशिन राउंड 7, अमिता राउंड 10। जोशिन यहां पर मैं लिख देता हूं कि राउंड 7 में आएगा ही आएगा। अमिता यहां पर मैं लिख देता हूं कि राउंड 10 में आएगी ही आएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या स्कोर पॉसिबल हो सकता है। चलिए अमिता का स्कोर देख लेते हैं। अमिता ने एक बार स्कोर किया है 7, दूसरी बार स्कोर किया है 3, 7, 8, 9 में, और वो खेल सकती है 8, 9, 10 में ही खेल सकती है। ठीक है, सो अमिता ने स्कोर किया है राउंड 3 में, राउंड 10 में। जोशिन ने स्कोर किया है राउंड 7 में। चलिए जोशिन के बारे में सोचते हैं। जोशिन 14 से 17 और उसने स्कोर किया है राउंड 7 में। राउंड 7 जहां पर 1 का स्कोर आप स्कोर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली जोशिन का स्कोर यहां पर 3 ही हो सकता है ना, बिकॉज जोशिन का इंक्रीज भी 3 से ही हुआ। आप देखिए ये 14 से 17 3 का ही इंक्रीज हुआ है। सो पता चल गया कि राउंड 7 में उसका क्या स्कोर था। अमिता की बात करते हैं। अमिता ने राउंड 10 में स्कोर किया है। अब राउंड 10 में वो या तो 7 का स्कोर कर सकती है या तो 3 का स्कोर कर सकती है। चलिए देखते हैं। राउंड 10 या तो 7 या तो 3, या तो 7 या तो 3। और कौन है जो राउंड 10 में स्कोर कर सकता है? लेट्स थिंक। और कौन है जो राउंड 10 में स्कोर कर सकता है? चलिए राउंड 10 में कौन कौन खेलेंगे, पहले आप इसको मार्क कर लीजिए। जोशिन खेलेगा राउंड 10 में, जोशिन खेलेगा, राइट। उसके बाद अमिता, बाला, चेन, डेविड, एरिक। एरिक का इंक्रीज देखिए, एरिक का इंक्रीज जो है वो 3 से लेकर सीधा 7 पर हो रहा है यहां पर। सो देयर इज अ 7 का इंक्रीज। और एरिक 3-1-3 अब स्कोर नहीं कर सकता, बिकॉज हमें कॉन्जिक्यूटिव स्कोर करने वाले लोग मिल चुके हैं। कौन? एक कॉन्जिक्यूटिव स्कोर करने वाला है आइकिया और दूसरा है चेन। सो ये जो ओनली 2 प्लेयर्स थे ना, ओनली 2 प्लेयर्स जो 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड में स्कोर कर रहे हैं, वो है चेन एंड आइकिया। चेन एंड आइकिया, यही मालूम है अपने को। सो थिंक अबाउट एरिक। एरिक कौन से राउंड खेल रहा है? एरिक राउंड खेल रहा है 1, 2, 3, 4, 5
एंड लास्ट में जाके राउंड नंबर 10। एरिक इन राउंड में से सिर्फ और सिर्फ राउंड 10 खेल रहा है, राउंड 10, और वो 7 का स्कोर कर रहा है। सो ऑब्वियसली राउंड 10 का विनर इज एरिक। और यहां पर अमिता बची, तो अमिता ऑब्वियसली यहां पर 3 का स्कोर करेगी। सो हमारे पास राउंड 10 भी कंप्लीट हो चुका है। राउंड 7 में हमें पता चल चुका है कि जोशिन 3 का स्कोर करेगा और आइकिया 1 का स्कोर करेगी। एक विनर बाकी है राउंड 7 का। चलो राउंड 7 का विनर को सोचते हैं कौन बन सकता है। राउंड 7 का विनर, लेट्स गो बैक टू द डेटा। राउंड 7 को आइडेंटिफाई करते हैं पहले। राउंड 7 में कौन करेगा? गॉर्डन, हंसा, आइकिया, जोशिन, अमिता एंड बाला। ओके, देखिए राउंड 7 के विनर की बात चल रही है, ठीक है। राउंड 7 का विनर, गॉर्डन तो 0 स्कोर कर रहा है तो विनर हो ही नहीं सकता। हंसा भी विनर नहीं हो सकती बिकॉज हंसा 1 से 4 पे आ रही है, मतलब हंसा ने कहीं ना कहीं 3 का स्कोर किया है। हंसा ने कहीं ना कहीं 3 का स्कोर किया है, ठीक है। आइकिया 7-7-1, लेकिन वो हमें विनर मिल चुके हैं, सो आइकिया इज डन। जोशिन भी 3 का ही स्कोर कर रहा है, सो जोशिन विनर नहीं हो सकता। बचे अमिता बाला। अमिता बाला में से कौन विनर हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ अमिता विनर हो सकती है, क्योंकि बाला ने भी कहीं ना कहीं 3 का ही स्कोर किया है, 2 से 5 3। सो अमिता इज द विनर इन राउंड 7, डाल देते हैं अमिता इज विनर इन राउंड 7। चलिए ये हमें मिल गया राउंड। ओके ओके, अब सोचते हैं कि 1 के स्कोर करने वाले फिलअप कर देते हैं। 1 के स्कोर करने वाले 3 जगह खाली है 1 के स्कोर पे, 3 जगह खाली है 1 के स्कोर पे, है ना। सो लेट्स सी कौन ये 3 जगह भर सकता है। और ये तीनों की 3 राउंड 1 to 6 में है, सो वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट दी फर्स्ट टेबल। सिर्फ इसी की बात करनी है। हंसा 1 स्कोर कर रही है राउंड 6 तक। हंसा 1 का स्कोर, तो कहीं ना कहीं हंसा तो आनी ही चाहिए। चलो हंसा कौन से राउंड खेल रही है पहले आप ये डिसाइड कर लो। हंसा खेलेगी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खेलेगी। यहां पर लिख रहा हूं मैं 3 4 5 6 7 8, है ना। उसके आगे हंसा नहीं खेल पाएगी, ना उससे पहले ना उससे आगे। सो हंसा कहीं 3 4 5 6 में 1 का स्कोर कर रही है। 3 4 5 6 में 1 का स्कोर कर रही है, मतलब 3 4 5 6 में तो अमिता कर रही है, तो यहां कहीं ना कहीं एक हंसा आएगी, एक हंसा यहां पर आने वाली है, ठीक है। वापस चलते हैं, बाकी कौन 1 का स्कोर कर रहा है? आइकिया, देखिए आइकिया का 2 पॉइंट है, 2 भी 1-1 ही हो सकता है। और आइकिया कौन से राउंड खेलेगी? आइकिया खेल पाएगी 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 4 5 6 तक आइकिया का 1 and 1 स्कोर होना चाहिए। 4 5 6 में 4 5 6 में आइकिया का कहीं ना कहीं 1 and 1 स्कोर होना चाहिए। 4 5 6 में देख लेते हैं टेबल। 4 5 6 में 1 6 में तो ए है, तो ये पक्का आइकिया दोनों होगी। यहां पर आइकिया आ जाएगा और ये हंसा आ जाएगी। सो 7 के स्कोर वाले सारे के सारे डन, 1 के स्कोर वाले सारे के सारे डन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सेट, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ दिस सेट गिव्स डिफरेंट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन टू, बिकॉज आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, आप एक चीज से दूसरा चीज भर रहे हो। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टेबल, करेक्ट, बट यस इसको सोल्व करने में मजा बड़ा आता है। इसको सोल्व करने से आपको सीख मिलती है, you get to learn. So I'm okay spending 5 minutes more in explaining, but it is important for me to make you participate with me right now. Okay, 3 वाला टेबल पूरा अभी ऑलमोस्ट बचा हुआ है, 3 वाला टेबल पूरा ऑलमोस्ट बचा हुआ है। चलिए कहां से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? सो हमने ये देखना है 3 किसने स्कोर किया है पहले राउंड 1 2 3 4 5 में। चलो तो वो देख लेते हैं। कोई भी डेटा राउंड 1 2 3 4 5 के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। चेन ने इधर 3 कहीं ना कहीं स्कोर किया है। सो चेन कौन से मैचेस खेल रहा है? चेन खेल रहा है 1 2 3 एंड 8 9 10। सो 1 2 3 में उसने कहीं ना कहीं 3 का स्कोर किया है। 1 2 3 में कहीं ना कहीं 3 का स्कोर किया है। सो यहां पर लिख देते हैं 1 2 3 में एक आएगा चेन कहीं ना कहीं। सो 1 2 3 में एक चेन आएगा, मैं यहां पर बस लिख देता हूं चेन 1 ऑफ 1 2 3। 3 का स्कोर यहां पर आएगा कहीं ना कहीं चेन का, ठीक है। ओके, दूसरा हमें क्या पता चल सकता है? और कौन है 3 के स्कोर करने वाले? देखो अमिता तो 3 का स्कोर कर नहीं रही, बाला नहीं कर रहा, डेविड है जो 6 का स्कोर लिए बैठा है। सो डेविड हैज टू हैव 2 3s,
David has to have 2 3s. Eric has to have 1 3. Eric has to have 1 3. चलिए डेविड और एरिक की बात करते हैं. चेन तो पता चल चुका है कि चेन 1 2 3 में करेगा, ठीक है. सो ये इधर में लिख देते हैं कि 1 2 3 के में से कोई एक होगा. ये डेविड पे आ जाते हैं. डेविड कौन से राउंड खेलेगा? 1 2 3 4, उसके बाद फिर 9 एंड 10. सो 1 2 3 4 में 2 बार डेविड आएगा. 1 2 3 4 में 2 बार डेविड आएगा. 1 2 3 में 1 बार चेन. 1 2 3 4 में 2 बार डेविड. ओके. एरिक के बारे में सोचते हैं. जैसे मैं इधर लिख देता हूं 1 2 3 4. एरिक कौन से मैच खेल रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 10. 1 2 3 4 5 एंड 10. नाउ एरिक भी एक 3 का स्कोर कर रहा है. एरिक भी एक 3 का स्कोर कर रहा है 1 2 3 4 5 में. 1 2 3 4 5 में एक 3 का स्कोर कर रहा है. देखिए आप ध्यान से देखिए. एक जगह भरेगी चेन से, 2 जगह भरेगी डेविड से, एक जगह भरेगी एरिक से. हमारे पास जगह कौन सी खाली है? तो राउंड 6 का मालूम है. राउंड 1 2 3 4 5 ही खाली है. राउंड 1 2 3 4 5 ही खाली है. सो उन पे ही फोकस करना है. राउंड 1 2 3 4 5. अब देखिए यहां पर चेन आ नहीं सकता. राउंड 4 राउंड 5 में चेन आ नहीं सकता. चेन सिर्फ 1 2 3 में एक जगह पर आएगा. चेन सिर्फ 1 2 3 में एक जगह पर आएगा. और 1 2 3 4 में डेविड 2 बार आएगा. 1 2 3 4 में डेविड 2 बार आएगा. ठीक है, इतना अभी तक मालूम है. ओके. नाउ राउंड 1 2 3 4 5, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो तो इतने ही हैं. राउंड 1 2 3 4 5. चलो राउंड 1 में अगर मैं राउंड 5 के बारे में सोचूं, राउंड 5. सो राउंड 5 कौन खेल रहा है? राउंड 5 एरिक, फातिमा, गॉर्डन, हंसा, आइकिया, जोशन, इतने लोग खेल रहे हैं. ठीक है. राउंड 5 गॉर्डन का 3 हम सेट कर चुके हैं. फातिमा का 3 एक बाकी है. और हमें फातिमा के बारे में एक और चीज पता थी. एरिक एंड फातिमा बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड 1 2 3 4 5 6 में. एरिक फातिमा कहां आ सकते हैं? चलिए देखते हैं. एरिक फातिमा को आप कहां डाल सकते हो? यहां पर दोनों को नहीं डाल सकते. यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहीं पे आ सकता है. सो एरिक स्कोर्ड इन राउंड 3. ये हमें पता चल गया. एरिक स्कोर्ड इन राउंड 3. ओके. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है. डेविड 1 2 3 4 में 2 बार आएगा, 2 बार. और चेन 1 2 3 में 1 बार. 3 तो जा चुका है. सो अब बचा है 1 2 4. सो डेविड 1 2 4 में 2 बार. ट्वाइस. डेविड 1 2 4 में ट्वाइस. एंड चेन 1 2 में, बिकॉज 3 भी जा चुका है, 1 2 में वंस. तो अब देखिए 1 2 की चीजें, कंपटीशन अभी भी चालू है. 1 2 में चेन आ सकता है, 1 2 में डेविड भी आ सकता है, लेकिन 4 में तो अब डेविड ही आएगा. ये पता चल गया कि भाई यहां पर डेविड होगा. इसका मतलब यहां पर चेन डेविड में से कोई भी हो सकता है. तो मैं लिख रहा हूं लेट्स से C/D एंड D/C, क्योंकि इसके बारे में हम और कंक्लूड नहीं कर सकते. आते हैं राउंड 5 के ऊपर. राउंड 5 जोशन, यहां पर है आइकिया. ठीक है. ये अभी 3 बॉक्सेस बस बाकी है. 3 बॉक्सेस. जस्ट अ लिटिल मोर टाइम एंड वी आर थ्रू. थिंक ऑफ राउंड 5. सो लेट्स थिंक ऑफ राउंड 5. वी आर डन विद चेन एंड डेविड का पूरा केस. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ राउंड 5. सो लेट्स गो बैक टू डेटा. राउंड 5 पे फोकस करते हैं. वंस अगेन राउंड 5 कौन खेलेगा? एरिक, फातिमा, गॉर्डन, हंसा, आइकिया, जोशन. आइकिया 3 स्कोर कर नहीं सकती. जोशन 3 स्कोर कर नहीं सकता. हंसा 3 स्कोर कर नहीं सकती. बचे हैं कौन? एरिक, फातिमा एंड गॉर्डन. गॉर्डन का हमने ऑलमोस्ट सब कुछ एलोकेट कर चुके हैं. फातिमा का भी ये सब कुछ एलोकेट हो गया है. सो एरिक का 1 स्कोर बाकी है, 3 है ना. राउंड 5 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो राउंड 5, थिंक ऑफ राउंड 5. एरिक राउंड 3 में स्कोर कर चुका है यहां पर. एरिक और राउंड 5 में हमारे पास सो गॉर्डन का 3 वाला स्कोर इधर हमने ले लिया है. ठीक है. फातिमा का एक 3 वाला स्कोर बाकी है गाइस. सो फातिमा का एक 3 वाला स्कोर यहां पर आएगा. फातिमा का 3 वाला स्कोर यहां पर आएगा.
अब वापस आ जाते हैं राउंड 8 राउंड 9 पे, बस यही दोनों इंफॉर्मेशन बाकी है। राउंड 8 राउंड 9 दोनों में विनर्स 7 पॉइंट के और 1 पॉइंट के सेम है। राउंड 8 राउंड 9 पे आते हैं। सो लेट्स गो बैक टू डेटा। यहां पर कौन है जो 3 का स्कोर कर रहे हैं? 4 लोग 3 का स्कोर कर रहे हैं, अमिता, बाला, हंसा, जोशिन। अमिता, बाला, हंसा, जोशिन। उसमें से कितने लोग हम भर चुके हैं? जोशिन, अमिता भर चुके हैं, तो बचे कौन? जोशिन, अमिता आ चुके हैं, तो बचे हैं बाला, ये एक बचा है, एंड हंसा बची है। बाला एंड हंसा। चलो बाला एंड हंसा पे ही फोकस करें, मैं बाकी के राउंड डिलीट कर रहा हूं। ओके, बाला कौन से राउंड खेलेगा 7 8 9 10 में से? सो बाला खेलेगा 1 2 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 खेलेगा बाला, 7 8 9 10 सारे के सारे खेलेगा बाला। 7 8 9 10 ये सारे के सारे राउंड बाला खेल रहा है। ओके, फाइन विद दैट। उसके बाद आते हैं हंसा पे। हंसा कौन से राउंड खेलेगी? हंसा खेलेगी 7 8 9 नहीं खेलेगी, 10 नहीं खेलेगी। सो हंसा 7 8 ही खेल सकती है। हंसा राउंड 7 8 ही खेल सकती है, और उसमें से किसी एक इसने 3 स्कोर किया है। कहां पर 3 का स्कोर कर सकती है? हंसा 7 8 ही खेल सकती है, और वहां 3 का स्कोर यहीं पे कर सकती है। तो ये हो गया हंसा और ये हो गया बाला। एंड नाउ वी आर डन, राइट? नाउ वी आर डन। सो आई वॉज नॉट जोकिंग व्हेन आई सेड दैट दिस इज अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, करेक्ट? This question had so many clues, but with one clue you could make 3-4 deductions, और वही मैजिक था। That is what you had to understood. Okay, चलिए, so ये टेबल को वैसे रखते हैं। This is an amazing piece of work, and you and I have made it possible together. अब हम जाते हैं क्वेश्चंस के पास। What were the scores of Chen, David, Eric, CDE respectively after round 3? राउंड 3 के बाद तक CDE का स्कोर क्या था? देखो, राउंड 1 में राउंड 1 और राउंड 2 C और D के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। राउंड 1 राउंड 2 में C और D के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। एरिक का भी 3 पॉइंट हो जाएगा। सो 3 3 3 दैट शुड बी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन C, 3 3 3। दैट वाज क्वेश्चन 1। विल मूव टू क्वेश्चन 2 नाउ। Which 3 players were in the last 3 positions after round 4? अच्छा, which 3 players were in the last 3 positions after round 4? After round 4, राउंड 4 के बाद कौन से 3 प्लेयर लास्ट के 3 पोजीशन पे थे? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें टेबल पॉइंट टेबल बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो बैक टू द डेटा। ठीक है, ओके, हमारे पॉइंट्स यहां पर हैं, हमारे पॉइंट्स यहां पर हैं। राउंड 1 2 3 4 ही है ना? 4 तक पूछा है। Which 3 players were in the last 3 positions after round 4? Yes. राउंड 4 के एंड तक कौन से प्लेयर्स लास्ट पोजीशन पे थे? एक बात तो आपको दिख रही होगी कि यार जोशिन कहीं पे है नहीं राउंड 1 2 3 4 में। जोशिन कुछ जीता नहीं, सो ऑब्वियसली जोशिन लूजर साइड में होना चाहिए। जोशिन कहां पर लिखूं? मैं यहां पर लिख देता हूं। एक होगा जोशिन, याद रखना मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि जोशिन कुछ जीता ही नहीं है। ठीक है, चलो A B C D E F G भी विनिंग पोजीशन पे है, एच आई लास्ट में है यहां पर। ओके, एच आई लास्ट में है, एच आई जे हमें वहां तक जाना है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एच आई जे, और कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ओके, जी एच आई जे। सो एक तो हमने जोशिन को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो जोशिन आंसर में होना ही चाहिए। सो अगर यहां पर जोशिन नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, अगर यहां पर जोशिन नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। जोशिन के साथ है एच आई या फिर बी आई, तो आई दोनों में है। बचा है हंसा बाला, बस हंसा बाला में देख लीजिए किसके पॉइंट ज्यादा किसके पॉइंट कम। हंसा बाला, बाला 2 बार 1-1 जीता है, हंसा एक ही बार 1 जीते, तो ऑब्वियसली हंसा ही आनी चाहिए। सो आंसर हैज टू बी हंसा वाला आंसर। दैट मींस हंसा आई किया जोशिन, ए इज द राइट आंसर, नॉट सी, राइट? सो इवन टेबल सॉल्व हो जाने के बाद भी ये इसके क्वेश्चन भी थोड़े से आप वैसे क्वेश्चन है जहां पर टाइम देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा रफ वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा। सो दैट इज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, राइट? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, इट फ्रस्ट्रेट्स यू, इट मेक्स यू क्वेश्चन योर लाइफ चॉइसेस, राइट?
That was question 2. Question 3, which player scored points in maximum number of rounds? कितने पॉइंट से नहीं पूछा है, कौन से प्लेयर ने मैक्सिमम राउंड्स में स्कोर किया है ये पूछा है। और अपने पास ऑप्शन है ए सी आई जे, बस इसमें ही चेक करो, ए सी आई जे, ए सी आई जे। चलो ए कितनी बार आया, 1 2 3 4, ए आया 4 टाइम्स, ए सी आई जे। सी कितनी बार आया, 1, अगर यहां पर है तो यहां पर नहीं है, याद रखना है ना। तो सी आया यहां पर 1, फिर 2 3 4, सी भी 4 टाइम्स। सो ऑब्वियसली क्योंकि बोथ ऑफ देम वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, सो देयर मस्ट बी समबडी जो इनसे भी ज्यादा बार आया है, सो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। आई के पास चलते हैं, आई 1 2 3 4 5, देखो 5 मिला आई में। ओके, अब मुझे जे 6 बार दिख तो नहीं रहा था, बट देख लेते हैं फिर भी। सो जे कितनी बार आया है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, 1 2 3, जे तो 3 ही बार है। सो ऑब्वियसली आई इज द आंसर, 5 बार। आई किया इज द आंसर, क्वेश्चन 3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, विच प्लेयर्स स्कोर्ड पॉइंट्स इन द लास्ट राउंड? चलो ये आसान है, लास्ट राउंड में किसने स्कोर किया है, EAC, 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 D is the answer, right? Amazing question, amazing question. Very difficult. Should never choose this in the actual test. But once you please solve it again. यहां पर ही वीडियो पॉज कर दीजिए, रिवाइंड कीजिए, go back to the starting of the question. फिर से एक बार पूरा टेबल बनाओ. It will give you immense amount of satisfaction, immense amount of confidence boost if you make this table on your own. It will be amazing. This is a great exercise for checking your logic, your logical ability, your logical reasoning. Amazing. This is amazing, right? It's a great amount of data interpretation is required. You need to read the data and understand what it means. इसको मैं कहाँ डाल सकता हूँ, टेबल में कहाँ फिट कर सकता हूँ, right? चलिए, so with that, let's close this and let's move towards the set 5.